This video is about moles, and in this video, I am only going to be focused on the mole calculations and its stoichiometric relationship. This concept is generally considered very hard for the students. Um, I don't find any practical reason for finding it very difficult, but as you are going to study this topic with me, I might think that you are able to do the mole questions with more efficiency now onwards. Acha, before going into any further detail or the mole calculations or the mole questions, there are three basic things without which you are unable to do a mole calculation question. Number one are the basic formulas, and they are not very much like tons of formulas that you have to memorize. These are just these three basic formulas. Acha, when I will tell you people how to solve the question, I will get into detail of these questions at that these formulas at that time. Next basic thing is this particular periodic table that you people may find at the end of your papers generally, and very important key to use this particular table is that आपके अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं when they have to find out for the atomic masses and confusion में जल्दी में टेंशन में वो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास लिख देते हैं और एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिख देते हैं. What I told my students, a very common thing, कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स है जैसे बोरॉन का दिया हुआ है at the number above it's 5 and below it's written 11, and you are so much confused or you are in so much hurry that you do not know how to use this periodic table without looking at the key. तो जो आपके पास बड़ा वाला नंबर है that is the atomic mass, and this is the one that we people are going to use in our mole calculation questions. And you don't have to take anything, you simply not concerned with this atomic number thing right now. ये वाले एटॉमिक नंबर आपके लिए उस वक्त बेनिफिशियल या यूजफुल है व्हेन यू पीपल हैव टू गो फॉर द चैप्टर 2 के अंदर, जब आप लोग एटॉमिक मासेस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और आइसोटोप्स की बात करते हो, तब आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए. अच्छा, another very important thing is obviously your calculator, because maths included है इसके अंदर, तो आपको अपने कैलकुलेटर जो हैं आपके पास होने चाहिए. अच्छा, now going back to basics again. First of all, you people, when you have look at the mole question in your paper, सबसे पहले उसको ये देखो कि is it about the solids, is it about the solutions, or is it about the gases. अगर आपने एक दफा ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि आपका सवाल सॉलिड्स के ऊपर है, सॉल्यूशंस के ऊपर है या गैसेस के ऊपर है, things will be far more easy for you. अच्छा, for calculating the number of moles, if you have got a solid, for example sodium chloride दिया हुआ है solid form के अंदर, तो उसके अंदर what you people have to do, you have to find out the mass in grams and the molar mass. अब molar mass कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा अगेन हमारा periodic table. और यहाँ पे जो इसके एटॉमिक masses दिए हुए हैं, सिंपल आप उसको ऐड करते जाओगे, आपके पास मोलर मास हो जाएगा. Molar mass also does mean mass of 1 mole of that particular substance. Next comes, if your question is about the solution, अब solution के अंदर obviously कोई solid चीज है जो कि एक particular volume के अंदर dissolve हुई होगी, तो ही हम उसको जो है solution कह सकते हैं. And solutions की जो इसके बाद जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं वो that is the concentration. एंड कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो आपने चीज यहाँ पे नोट करनी है वो ये चीज नोट करनी है दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कि हाउ मेनी मोल्स दे आर डिसॉल्व्ड इन 1 डीएम क्यूब. यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट इस सवाल के अंदर ये आता है कि एग्जामिनर्स
या पेपर सेटर्स, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज give you people volume in CM cube. अब हमने CM cube को DM cube में कन्वर्ट करना है, तो 1000 CM cube is equal to 1 DM cube. ये बात याद रखनी है, चाहे आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम हो, चाहे आपके पास गैसेस का वॉल्यूम हो, आप जब भी सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करोगे, आपके पास यही चीज आएगी. नेक्स्ट कम्स फॉर गैसेस. अब गैसेस के अंदर भी ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूलाज लिखे हुए, गैसेस में भी ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, बट जस्ट टू मेक दिस थिंग इजियर, 1 मोल ऑफ एनी गैस, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, नहीं मैं कह रही, 1 mole of any gas occupies 24 dm cube at RTP. अब RTP क्या है? RTP is room temperature and pressure. Or it contains 1 mole of any gas. It may occupy 22.4 dm cube, that is STP. But generally, we use this particular thing. ठीक है, अनलेस और अनटिल आपके सवाल के अंदर उसने 22.4 आपको यूज करने के लिए कहा हो और STP लिखा हो. तो 1 mole of any gas occupy 24 dm cube. नो मैटर गैस का जो वॉल्यूम, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज छोटा है, जैसे हाइड्रोजन है, या फिर आपके पास बहुत ही कोई हाई मॉलिक्यूलर मास की गैस है जैसे HCl है, लेकिन उनका 1 मोल 24 डीएम क्यूब ही ऑक्यूपाई करेगा. अच्छा, now we should move on to the mole questions because I will not get into these lengthy formulas. Here we have question about solutions. सबसे पहले मैं आपके साथ solutions की थोड़ी सी practice करूंगी, then we people will move on to other parts of the mole calculations. Hydrochloric acid है, and this is a question from recent paper. Hydrochloric acid है, it contains salts called chlorides and magnesium carbonate. अच्छा, now here they have given you people the chemical equation for the reaction, that magnesium carbonate react with hydrochloric acid to produce magnesium chloride. Obviously आगे दो और products भी बन रहे हैं, but that is not written in the statement. अच्छा, next comes the informative part. Student used 50 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप सवाल देख के साथ ये देखा करें कि इज इट अबाउट द सॉल्यूशंस, गैसेस और mass and grams है या सॉलिड्स के बारे में है. अब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस के सवाल है, दिस इज अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ स्टेटमेंट और डिस्क्राइबिंग. यहाँ पे उसने क्या कहा है, यहाँ पे उसने ये बताया है कि कितना वॉल्यूम है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है. मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट फॉर कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन के साथ जब भी उसने वॉल्यूम दिया हुआ होगा, इसका ये मतलब है कि वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है, वो आपसे मोल्स कैलकुलेट करवाना चाह रहा है. एंड दिस होल थिंग, this the highlighted thing, it will tell you about, ये आपको hint देगा that your question is about the solutions. अच्छा, calculate the mass in gram of magnesium carbonate needed to react exactly with. अच्छा, अब देखो इसके अंदर वही बात, वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है. ठीक है, उसने कहा मैस इन ग्राम को कैलकुलेट करो. किसके मैस इन ग्राम को कैलकुलेट करो? मैग्नीशियम कार्बोनेट के मैस इन ग्राम को कैलकुलेट करो. ठीक है, दी उसने इंफॉर्मेशन आपको HCl के बारे में है, इंफॉर्मेशन उसने आपको HCl के बारे में दी हुई है, लेकिन काम क्या करवाना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि कितना HCl की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे तुम रिलेट करो कि कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इन मैस इन ग्राम्स वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, अच्छा, क्या करने के लिए रिक्वायर्ड है? उसके लिए रिएक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए. अब ये वाली जो सारी उसने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो आपको ये स्टेप बाय स्टेप खुद सब कुछ करवाएगा. सबसे पहले वो क्या करवाएगा, सबसे पहले वो ये उसका पहला जो स्टेप है वो ये है कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो. किसके? HCl के.
कहाँ से मोल्स निकालो? इस इंफॉर्मेशन से मोल्स निकालो. अब नाउ आई एम गोइंग टू माय प्रीवियस बेसिक स्लाइड. कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, और वॉल्यूम डीएम क्यूब में होना चाहिए. सही बात है. सवाल की तरफ आते हैं. ठीक है, अगर आपके पास कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आपके पास मोल्स क्या होने चाहिए? m इज इक्वल टू सी इंटू वी. ऐसी बात है ना. अब v आपके पास किस यूनिट में होना चाहिए? v आपके पास होना चाहिए है डीएम क्यूब में. आपके पास कौन सा यूनिट है? आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है. तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये फॉर्मूला डिसाइड करने से भी पहले 50 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आएगा, और 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय जो कंसंट्रेशन उसने दी हुई है 2. इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ मोल्स का आंसर आ जाएगा. लेट मी कैलकुलेट इट. This is not 5, this is 50 divided by 1000 multiplied by 2, and answer comes out to be 0.1. ठीक है, अब आपके पास जो आंसर आया है that is 0.1 moles. ये आपके पास 50 हो गया. नेक्स्ट दे आर सेइंग कि आपने डिटरमिन करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब आप मोल को मोल से तो रिलेट कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे उसने कहा है विच वुड रिएक्ट विद 50 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब HCl. अब यहाँ पे इनडायरेक्टली उसके कहने का मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो 0.1 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट किया होगा. ठीक है, अब इसके लिए आप जाओगे टूवर्ड्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसने क्या कहा है कि आपके पास HCl के, ये आप गॉट HCl रेशियो Mg to CO3. HCl का मतलब है कि आपके पास जो HCl है that is in a balanced chemical equation 2 moles and they are reacting with 1 mole of magnesium carbonate. हमारे पास क्या है? 0.1 है. ठीक है, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1. तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.05. ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिखोगे 0.05. उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास यहाँ पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं हम लोग, दैट इज 24. ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. आप क्या करेंगे? आप करेंगे 24 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 24 प्लस 12 प्लस this comes out to be 84. ठीक है, अब उसने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट नीडेड. अब हमें ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का MR भी पता चल गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गए हैं. अब उसने कहा है कि आपको मास चाहिए इसका. तो व्हाट यू पीपल विल डू, आप इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे. इसी चीज़ को हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर जाके देखते हैं कि अब आपके पास सॉलिड है. सॉलिड है
आपको ये मास इन ग्राम्स पता करने थे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो what you people will do, you people will say 84 84 multiplied by 0.05. Let's calculate. ये आपके पास आ रहा है 4.2 grams, ठीक है। So this is what we people have done it for, like um, for this particular question solutions के बारे में। We will do more practice of solutions now. Now in this question they are saying copper 2 sulfate crystals are hydrated. Okay. Copper 2 sulfate crystals, they are made by reacting copper 2 carbonate with dilute sulfuric acid. Fair enough. Okay. अच्छा जी, ठीक है। उसी बात को उसने यहाँ नीचे इक्वेशन में लिखा है, एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब all these questions, step number 1, 2, 3, 4 and 5, these all are about the formation of copper to sulfate, hydrated copper to sulfate. We are simply not concerned with all these steps. इसके बारे में सवाल आए होंगे आगे, बट वी विल सिंपली फोकस ऑन आवर मोल पोर्शन। उसने कहा है आपने मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैक्सिमम मास हो या मास हो, वी हैव टू कैलकुलेट द मास। मास वाला फॉर्मूला लगेगा of the copper to sulfate crystals that can form using the following steps. उसने कहा कैलकुलेट द नंबर, अब हमने मास देखना है कि कितना बना है, ठीक है। इसके लिए अगेन वो हमसे ये सारे काम करवाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 in 50 cm cube of 0.05 मोल per dm cube of H2SO4। जब भी आप लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट मिले जिसमें उसने वॉल्यूम को और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को लिखा हो, जिसका मतलब है कि वो आपसे कौन सा फॉर्मूला यूज करवाना चाह रहा है, वो करवाना चाह रहा है वही जो हमने अभी पीछे भी डिसाइड किया है, मोल्स इज इक्वल टू सी इंटू वी। अब अगेन वही वाली बात उसने की है, आपको वॉल्यूम उसने फिर सीएम क्यूब में दे दिया है, हमने इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 into 10 is to power 3. माइनस 3। अच्छा, उसने कहा डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब इसके लिए व्हाट वी पीपल हैव टू डू, वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन जहाँ पे उसने आपको मोलर रेशियो दी होगी। ये देखो जरा, आपके पास H2SO4
इसमें, और जो आपके पास CuSO4.5H2 है, इन दोनों में 1:1 का रेशियो है। इसका ये मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास H2SO4 के होंगे, उतने ही आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट के प्रोड्यूस होंगे। सो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आपको ये लिखना है कि H2SO4 रेशियो CuSO4.5H2O 1:1 की रेशियो है। 2.5 into 10 is to power -3, it will give you 2.5 into 10 is to power -3, और इसी चीज को आप यहाँ पे ब्लैंक में लिख दोगे। अब उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसका MR कैलकुलेट करके दे दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। उसने कहा 250 है, सही है। अगर आपको ये ना भी दिया हो तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट। नेक्स्ट उसने कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ कॉपर सल्फेट दैट कैन बी फॉर्म। वही पुरानी वाली बात, आपने मोलर मास को, MR को मल्टीप्लाई करना है विद विद दिस वैल्यू जो आपने नंबर ऑफ मोल्स उसको निकालना है, 2.5 into 10 is to power -3, and here it will, you will get the answer. Here you will write your answer, इसको आप कैलकुलेटर में डालोगे and you will get that, ठीक है। One more question on solutions. One more question on solutions. उसमें इसने कहा है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एसिड बेस जब रिएक्ट कर रहा है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा होता है। अगर यहाँ आपके पास कार्बोनेट होता तो तीसरा प्रोडक्ट भी बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है नेम अ सूटेबल इंडिकेटर टू यूज इन दिस टाइट्रेशन। यू मे यूज मिथाइल ऑरेंज, यू मे यूज फेनोल्फथलीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है कि सवाल के अंदर उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने हमें दी हुई है 25 cm³ ऑफ दिस, इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन वाला सवाल है। इट रिएक्टेड विद 20 cm³ ऑफ H2SO4, ठीक है। वो हमसे क्या करवाना चाह रहा है? वो हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है कंसंट्रेशन किसकी? इसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसका उसने मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए उसने हमने क्या करना है? उसने कहा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, ठीक है। मोल पर DM³ में आपने करनी है। और फॉलोइंग स्टेप्स वो ऑलरेडी वो आपको स्टेप बाय स्टेप खुद करवाएगा। उसने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 250 cm³। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो मैं इसे कैलकुलेट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ से आपको जाना पड़ेगा इधर टू फिगर इट आउट कि उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू C/V। अब वही हमने जो पिछले लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर किया है, तो वॉल्यूम को आप जो है वो डिवाइड बाय 1000 कर रहे हो, क्योंकि हमने इसको, हमें चाहिए है DM³ में, डिमांड हमारी DM³ है। डिवाइडेड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.04। इसको आप कैलकुलेटर में डालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 multiplied by 25 divided by 1000. This is 1 into 10 is to power -3. 1 into 10 is to power -3. Okay.
अब हमने उसने हमें ये कहा है कि यू हैव टू डिड्यूस द नंबर ऑफ moles of H2SO4 that reacted with 25 cm cube of NaOH. This is what we people get from the balanced chemical equation. अच्छा, अब जब तक आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली लिखोगे नहीं और उसको कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको सही मोलर रेशियो नहीं पता चलेगी। Na2SO4 प्लस H2O, देख लो 2 हाइड्रोजन एंड 2 4 हाइड्रोजन हेयर, 2 यहाँ पे लिखोगे, सोडियम 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 प्लस 4 6, 4 इधर हो गए, 2 इधर 6 हो गए, ये बैलेंस है आपकी इक्वेशन। सो NaOH के 2 मोल्स और H2SO4 का 1 मोल। अच्छा, NaOH रेशो H2SO4, आपके पास NaOH है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 है और H2SO4 1 है। और हमारे पास हमने जो NaOH के निकाले हैं 1 into 10 raised to power minus 3 है, and here x you people will calculate it. फिर उसने कहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब ये आपके पास मोल्स आए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना टेक्निकल सी बात है, हम कंसंट्रेशन कहते हैं मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने मोल्स इस पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, उन्हीं मोल्स को अगर आप डिसॉल्व करोगे 1 dm³ में, वो आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना, जो आंसर आपके पास यहाँ पे मोल्स में आया था उसी आंसर को आप यहाँ पे लिखोगे, सिर्फ फर्क कितना यूनिट में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मोल्स थे, यहाँ उन्हीं मोल्स को आपने डिसॉल्व कर दिया 1 dm³ में, 1 लीटर पानी में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस थिंग in gram per dm³। Now this is also a very easy part, but students they do confuse in it। उसने कहा है कि आपके पास ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, लेकिन हमने फर्क कहाँ पर डालना है, हमने फर्क ये करना है कि जो मोल्स हैं इसको ग्राम पर dm³ में करना है। इन मोल्स को dm³ दोनों सेम है ना, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, इन मोल्स का मैस इन ग्राम निकाल लेंगे। तो मोल्स का मैस इन ग्राम कैसे निकालेंगे, आपके पास 0.04 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे सोडियम के mr के साथ, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इसका मैस इन ग्राम आ जाएगा। और उतना ही चाहे तुम उसको मोल्स की फॉर्म के यूनिट लिख दो, चाहे उसका मैस इन ग्राम लिख दो, लेकिन उसको जब 1 लीटर 1 dm³ के अंदर डिसॉल्व करोगे यू विल गेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर dm³, ठीक है। सो these are our questions about the concentration।